بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ کتاب ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیسی لکھی گئی اور آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں بولنا۔ چلے جی، ادرس الاولی سے ذرا پڑھیے گا۔ كتاب كتاب قلم ورق كرسي مكتب مقعد هذا كتاب هذا قلم ما سؤال ما هذا اچھا دیکھو هذا کیا ہو رہا ہے، مكتب. دیکھو ہو کیا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کتاب قلم ورق، یہ جو تنوین آخر میں آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہوگا ہمارے پاس اے۔ جیسے یہ کتاب کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس کا جواب ہوگا جیسے مطلب ہوگا کتاب ا بک، قلم ا پین۔ ٹھیک ہے، اے ایک کا جواب دے گا یہ، نعم. ٹھیک ہے، یہ تنوین جو ہے اس کے لیے آتا ہے۔ اچھا، یہ سب کے معنی آتے ہیں۔ مکتب کسے کہتے ہیں؟ دس. desk. مکتب کے دو معنی ہے، اپنے پاس لکھ لیں ذرا۔ مکتب ایک کو کہتے ہیں، ایک ہے ڈیسک جو آپ نے پڑھا بھی، ڈیسک، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہے آفس۔ ٹھیک ہے، اب مکتب میز کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ میز ہوتا ہے جس پہ پڑھائی لکھائی ہوتی ہو، یاد رہے گا۔ مکتب وہ میز نعم. ہے جس میں پڑھائی لکھائی نعم. ہوتی ہو، چاہے وہ گھر میں پڑھا ہو یا چاہے وہ آفس میں پڑھا ہو، لیکن اس کا مطلب ہوگا لکھائی پڑھائی والا میز۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی میز ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، ہم لکھ رہے ہیں اپنے پاس، سب لکھ رہے ہیں، سب کے پاس قلم ہے نا احباب؟ نعم. 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 جمیل۔ نعم. اس کو یہ دیکھو، ایک ایک میز جو ہے وہ ہمارا ڈائننگ ٹیبل والا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مائدہ۔ وہ مائدہ ہوتا ہے، مائدہ، ڈائننگ ٹیبل۔ سر ایک بات پوچھوں. پلیز۔ سر وہ میں نے وہ کچھ اردو کے وہ بالکل کلاسیکل سے ناول وغیرہ پڑھو تو اس میں تو وہ مدرسے کو بھی مکتب لکھا ہوتا ہے انہوں نے. نہیں، مکتب تو مکتب لکھتے مدرسے کو مدرسہ بولتے ہیں، مدرسہ ہی سر جو بولتے ہیں۔ اسکول وغیرہ ہوتے ہیں جیسے مکتب اسکولز ہوتے فارسی تھے میں، نا. فارسی میں اور ہاں اردو میں، فارسی. فارسی اور اردو میں جو ہے فارسی. مکتب لکھتے ہیں اس کو، اسکول کو جی جی مکتب سر بولتے میں پوچھ رہی تھی کہ وہ فارسی کا ہوتا ہے پھر وہ ہیں۔ ہاں فارسی میں ہاں، انہوں نے مکتب. اردو، اردو اور فارسی میں مکتب کا مطلب اسکول ہوتا ہے، ہاں جی، جی عربی میں۔ میں وہی اچھا، کنفرم. یہ معاہدہ ہے جی، ڈائننگ ٹیبل کو کہتے ہیں، اور ایک اور میز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں طاولہ، طاولہ۔ یہ طاولہ نارمل جو عام میز ہوتے ہیں نا، کامن جو میز ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ٹیبل، اور ٹیبل کا لفظ بھی طاولہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طاولہ، مائدہ اور مکتب، یہ تین ٹیبل ہو گئے آپ کے پاس، ٹھیک ہو گیا جی، یاد رہیں گے نا؟ نعم. اچھا جی، شاباش۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے مکتبہ۔ مکتبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک منٹ صبر کریں ذرا، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شاگرد اور بچے جو ہے نا، صرف مار سے ان کو سمجھ آتی ہے، آرام سے ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، اور بیوی بھی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो मकतबा, मकतबा कहते हैं लाइब्रेरी को। इसको भी अपने पास लिखे लिखे रखिए, ठीक है, लाइब्रेरी को। चलें, और जिदार, जिदार किसे कहते हैं? दीवार। हाँ, लेकिन जिदार को एक और लफ्ज भी कहते हैं, हाइद। हाइद, हाइद। हाइद और जिदार दोनों ही यूज होते हैं, तो आप दोनों को याद रखें समय। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ना, बस हम पढ़ रहे हैं ताकि आगे निकल रहे हैं, ठीक है। ये किताब भी आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ना पता उस्ताद, लगे यार हम पढ़ रहे हैं जी। मक़अद किसे कहते हैं? मकात कहाँ गुजरा है? हाँ, ये वाला मकात कुर्सी को बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये वर्ड भी आ गया, ठीक है। तो मकात बराबर है कुर्सी, सीट को बोलते हैं, ठीक है, मकात। और कोई लफ्ज है? नहीं है ना। चले, शाबाश। अच्छा, माँ है, माँ। माँ क्यों आता है? ये क्या लिखा हुआ है? माँ सवाल के लिए आता है और बराबर है सुआल। ये देखो लफ्ज है, सवाल नहीं है, बल्कि क्या लफ्ज है? सुआल। अगर देखो आपको, जैसे आप कहते हैं कि मेरा एक सवाल है, अब आपने ये नहीं कहना कि सर एक सवाल है, सर एक सवाल नहीं है। आप कहेंगे शेख या उस्ताज इंदी सुआल। इन इंदी सुआल कैसे कहेंगे जी हबीबा, क्या कहेंगे? इंदी सवाल। ये तो कंजा कह रही है। या उस्ताद इंदी सवाल। अच्छा, ये उस्ताज अरबी में ना उस्ताज होता है, हाँ, उस्ताज जाल के साथ है, ठीक है। या उस्ताज आइंदी सवाल, इसलिए मेरा एक सवाल है, ठीक है। और हफ्सा कैसे कहेंगी? उस्ताज इंदी सुआल। क्या बात है। तानिया है आज कि नहीं? तानिया सलाम भी किए या कि नहीं? उस्ताद हाँ। इंदी सवाल। हाँ जी, हिंदी सवाल, बस ठीक हो गया। अच्छा जी, नीचे आते हैं तो देखो सवाल कैसे करते हैं। कहते हैं माँ आता है सवाल के लिए, ठीक है। तो माँ, आप कोई बेजान चीज है ना, उसके मुतालिक सवाल ऐसे करते होते हैं। माँ हाजा, ये क्या है? माँ हाजा, ये क्या है? तो हाजा कुर्सी, इसका जवाब ऐसे होता है, हाजा कुर्सी के साथ देते हैं आप। अच्छा, तो ये सारे हमारे, ये सारे जो है ना, सारे क्लियर है हमारे, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसको जरा फिल करें जल्दी जल्दी से, शाबाश। हाजा स्पीड। कुर्सी। हम्म। कुर्सी। हाजा मकतब। हम्म। हाजा माइदा। शाबाश। हाजा बाबुन। हम्म। हाजा जिदारुन। शाबाश। हाजा किताबुन। हम्म। हाजा कलम। हाजा वरकुन। हम्म। हाजा कुर्सियुन। हम्म। हाजा बाबुन। हाजा हम्म। जिदारुन। हाजा किताबुन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर ठीक हो गई, ये तो हम सारा क्लियर है। ये आसान था हमारा आज का पहला सबक, आसान था। दूसरा सबक देखिए। अच्छा, अब इस तरफ आ जाएं जी। अदरस सानी, ठीक है, अदरस सानी, ये सानी आपने गिनती याद की है? सानी इसमें आता है कहीं? दूसरा। हाँ, ये सानी दूसरे का माना में होगा। अदरस सानी दूसरा सबक या दूसरा लेक्चर। अच्छा, रास, रास कहते हैं सर को, रास। इसको आपने ऐसे लिखना है, देखो रा और फिर रस, ऐसे लिखते होते हैं, ठीक, ताकि आपको याद हो कि मैंने कैसे लिखना है। वजहुन, अनफुन, फमुन, लिसानुन, बोले दफा जरा। रअसुन, हम्म। वजहुन, हम्म। अनफुन, हम्म। फम, फमुन, हम्म। लिसान। क्या बात है। अच्छा, तो कैसे कहेंगे जरा बोलें फिर, पीछे बोलें। हाजा रअसुन, हम्म। हाजा वजहुन, हम्म। हाजा अनफुन, हाजा फमुन, हाजा लिसान। जी, क्या बात है। अब देखिए जरा कि ये इसके बाद क्या कर रहे हैं। अब देखिए अहमद क्या बोल रहे हैं। हाजा किताबी, ये मेरी किताब है। हम्म। हाजा कलमी, ये मेरा कलम है। हम्म। हाजा वरक़ी, ये मेरा वर्का है। हाजा मकतबी, ये मेरा लिखने का मेज है।
हाजा मक़अदी, ये मेरी बैठने की जगह या सीट है। हाजा वजही, ये मेरा मुंह है। हाजा रअसी, ये मेरा सर है। हाजा अनफी, ये मेरी नाक है। हाजा फमी, ये मेरा मुंह है। हाजा लिसानी, ये मेरी जुबान है। शाबाश। अच्छा ये देखिए, इसमें एक और चीज भी यहाँ पे है, अगर आपकी तवज्जो हो, और ये देखो, हाजा किताब अहमद, ये अहमद की किताब है, अहमद की किताब है। ये एक मैं आपको कुल्लिया बता रहा हूँ, ग्रामर में हम इसको करेंगे दोबारा, लेकिन अभी यहाँ पे जरा सरे दस्त समझ लें इस बात को, कि जब दो लफ्ज ऐसे आ जाएं, तो आपने जो है ना इसको का के की वाला लगाना है, ठीक है। जैसे पहला लफ्ज क्या होगा, वो कामन होगा, कामन, उस पे अलिफ लाम नहीं होगा। दूसरे पे होगा या फिर वो खास लफ्ज होगा, ठीक है। रसूलुल्लाह, तो इसका क्या होगा, रसूलुल्लाह का तर्जुमा है अल्लाह का रसूल, पहले इसका तर्जुमा करना है फिर इसका तर्जुमा करना है, अल्लाह का रसूल। हम कहते हैं बैतुल्लाह, क्या तर्जुमा है, अल्लाह अल्लाह का का घर। घर। अल्लाह का घर। अच्छा हबीबुल्लाह, अल्लाह अल्लाह का का हबीब। प्यारा। अच्छा हाँ, तो अब अगर मैं यहाँ आ जाऊँ, इस तरह आ जाऊँ, देखो कलम, कलम मोहम्मद, तो फिर क्या मोहम्मद होगा, का का कलम। कलम, ऐसे मोहम्मद का तर्जुमा करना है, कलम। ठीक है। इसमें आपने बस ये ख्याल रखना है, याद ज़हन में याद रखना है कि पहला जो लफ्ज होगा ना वो कामन होगा, और कामन की पहचान एक जो आपको पता है वो कि अलिफ लाम नहीं होगा उस पे, बस आपने याद रखना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और दूसरा जो है वो खास होता है, खास का मतलब है कि या तो उस पे अलिफ लाम होगा या फिर वो कोई नाम होगा, आपने याद रखना है बस, ठीक है। हम फिर उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये किताब वो अहमद है, अहमद की किताब है, ठीक है। हाजा किताब अहमद, और हाजा किताबी, हाँ ये मेरी किताब है। अब इन्होंने वही काम किया जो आपने नहीं किया था, यानी किताबी या के साथ सबको लगा दिया, देखो किताबी, हाँ, कलमी, वारकी, मकतबी, मकअदी, उस्ताजी, देखो शाइखी, मुर्शिदी, ऐसे बोलते हैं ना, हबीबी, बैती, वालिदी, अबी, आखी, ये सारे लफ्ज या की वजह से हैं, ठीक है। और हमने ये इसमी में पढ़ा था, इसमी जब हम पढ़ रहे थे तब पढ़ा था हमने, वजहुन, वजही, अनफुन, अनफी, ये सारे उससे बने। अच्छा अब ये देखें जरा, ये इसको जरा पढ़े जरा, अल्लाहु रब्बी, ये अल्लाह मेरा कंजा ने, रब है। कंजा ये कितने का मिला है आपको, जी, कितने का मिला है आपको, क्या कितने का मिला? ये ठेका कितने का मिला है पढ़ने का, कि आप ही पढ़ती रहेंगी, ये बाकी क्या कर रही हैं यार, कैसी लड़कियां हैं यार। कोई ये खदरान की तो मैंने आवाज नहीं सुनी, क्या खदरान आई है कि नहीं आई, तानिया पत्नी आई भी है कि नहीं आई, हफ्सा आई भी सर है में कि, सर में आई थी, मैंने कहाँ बोला भी है। कहाँ बोला है, आपको गिनना बोलना पड़ता है, तानिया बोलो, तानिया बोलो, तानिया बोलो, खदरान बोलो, बोलो बोलो। जब मैं से कहूंगा तो कैसे सीखोगी बोलना, खुदा की बंदो। शुक्र है पंजाबी आती है, उर्दू आती है आपको, पढ़ा कर खुद ही जितना बोलोगी उतना सीखोगी। अब ये कंजा ही पढ़ी जा रही है, जब भी कोई कहता हूँ पढ़ो तो वो कंजा शुरू हो जाती है। तो ये बेचारी ने ठेका लिया हुआ है आपका, पढ़ो यार, सारे सारे करो, उसको तानिया आप पढ़ो, शाबाश। ये क्या है, अल्लाह रब्बी, अल्लाहु रब्बी, हम्म। अल इस्लाम दीनी, अल कुरान किताबी, मुहम्मदुन नबिय्यु, अल काबतु किबलती, इस्मी अब्दुल्लाह, मसमुक। अच्छा ये देखिए, इसमें मोहम्मद नबी ही, हाँ वही है ना, नबी ही, वही वही या लगाइए, नबी के, नबी में खुद भी एक या है और एक या और लगाइए, नबी ही आ गया है। अच्छा इसमें तो यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा यहाँ तक कह रहे हैं कि आपने जो लफ्ज सीखे ये तो हमारे उर्दू के अल्फाज है ना, खम्सा व इशरून कलिमा, इसका माना क्या हुआ, खम्सा व इशरून कलिमा। खम्सा कहते हैं पांच को, इशरून कहते हैं 20 को, और कलिमा है 25 का हमारा, हाँ 25 हो गया ये, और कलिमा अल्फाज। का मतलब है अल्फाज, हाँ जी। अल्फाज। हमने 25 अल्फाज इन 2 सफ़हात में सीखे हैं, 2 दिन में बंदा सीख लेता है अगर ये किताब पढ़े बंदा। ये किताब मैं आपको वैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये वैसे आपको देख रहा हूँ कि यहाँ किताब में है कुछ आपको फायदा से हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, ये यही वही अल्फाज है, इसको जो जल्दी से करें, शाबाश, ये तमरीन है, इसकी मश्क है। हाँ, जैसे हाजा उनफुन, अन, नहीं तो उनफुन तो नहीं आ सकता अनफुन, कभी भी। अनफुन, मेरी, अच्छा अनफुन। देखो, मेरी नाक है, कैसे बोलूंगा, हाजा अनफी, शाबाश। उनफी, उनफी होगा क्या, नहीं नहीं, अनफी? अनफ 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 है, अच्छा अनफ। हम्म। अनफी, अनफी। हम्म।
هذا हाजा فمي. हाँ शाबाश। हाजा लिसान, हम्म। लिसानी मेरी हाँ जुबान। हाँ। हाजा वजहु هذا मेरा وجهي मुंह। हम्म। وجهي हाँ। वजही मेरा मुंह। और ये मेरा सर है। हाँ। हाजा रअसी هذا मेरा رأسي. सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये सारा आपको आता है, बस इसमें उसमें हम नहीं पढ़ते, ठीक है, शाबाश, वेरी नाइस। और ये उन्होंने अब वो शुरू किया जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था, इसमी अब्दुल्ला वाला। अच्छा पढ़े जरा। मसमुक। मस्मुक। इसमी इसमी। सफील्ला। हाँ शाबाश। नहीं, मैं कमजा बोल रही थी। हाँ। कैफा हालुक। हम्म। अना كيف बिखैर حالك؟ वल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। कैफा अंता। अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। अंता अब्दुल्लाह। हादल किताबु का। हाँ हाजा किताबों का, हाजा किताबों का, पहले तो नहीं हाजा किताबु किताबी का। था, अब उन्हें काफ लगा शुरू किताबु कर का। दिया। हाँ। ये लड़के की किताब है। ये तुम्हारी किताब नहीं, ये तुम्हारी किताब है यार। हाँ ना, लड़का है ना, का है तो लड़का है ना। हाँ। हाँ, लड़का तुम्हारी ये होता का तो के लड़की किया की आता होती है। ना। हाँ हाँ। शाबाश। तो हम क्या क्या इससे हमने क्या फार्मूला निकाला है इसके लिए, इससे बचने के लिए क्या फार्मूला निकाला है हमने। क्या? आवाज नहीं आई आपकी। गंजा। कोई और बताएगा क्या जी जी। फार्मूला निकाला है हमने इससे निकालने की, इससे निकलने के लिए, लड़का और लड़की के मसले से निकलने के लिए क्या हल निकाला है हमने। सुकून लगा देते हैं ना किताब। आखिरी हर्फ पे। किताबुक शाबाश। बस कहते हैं ना, फिर किताबुक कहते हैं शाबाश बस। शाबाश, हाँ जी, तो लड़का लड़के से निकले, ये तुम्हारी किताब है, ठीक है। जी। अच्छा। हम्म। अच्छा जी। इसी तरह कलम है, तुम्हारी कलम, क्या कहेंगे, तुम्हारा वर्क। वड़क। ورق वड़क। हाँ शाबाश, ठीक है। ये नीचे लिखे हुए हैं सारे कलिमात, लिखे हुए हैं नीचे। हाजा कलमुक, जी। हाजा। مرق. हाँ हाँ। हाजा हाजा राशिक। هذا رأسك. هذا وجه هذا وجهك. هذا هذا وجهي शाबाश शाबाश أنفك. शाबाश। هذا هذا فمك. وجه हाँ هذا जी। لسانك. هذا لسانك जिंदाबाद, शाबाश, ठीक है, हदरान आपकी आवाज अब सुनी मैंने, शाबाश, बोला करो शाबाश। अच्छा ये वही उन्होंने वही सफा जो है यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दिया है, और उसके साथ कर दिया है या लगा दिया, या और काफ दोनों एक साथ लेके आए हैं। हाजा किताबी व हाजा किताबुक, हाजा कलमी व हाजा कलमुक, हाजा मकतबी व हाजा मकतबुक, हाजा वजही व हाजा वजहुक, हाजा रअसी व हाजा रअसुक, हाजा लिसानी व हाजा लिसानुक। तो लिसान, लिसान भी वही है, ये जो अरबी हम पढ़ते हैं इसको अल्लुगा अल अरबिया कहते हैं ना, जुबान अरबी जुबान को। तो अरबी जुबान को अल्लाह। लिसान अरबी भी कहते हैं, लिसान अगर आएगा तो अरबी आएगा साथ में, ठीक है। लिसान अरबी। मैं जैसे मैं कहूँगा अना अदरुस लिसान अरबी, ठीक है, मैं लिसान अरबी जुबान सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अदरुस का माना होगा पढ़ रही हूँ, ठीक है। और अगर सीखना है तो अतअल्लम, अना अतअल्लम अल्लुगा अल अरबिया। देखो अल्लुगा अल अरबिया, तो ये है जुबान, दोनों के लिए जुबान है, ठीक है। ये अल्लुगा से मुराद तो वही जुबान होती है जो कि लैंग्वेज के मानों में होती है, और लिसान से मुराद यहाँ टंग है। तो दोनों लिसान दोनों के सर लिए आ सकता है, हाँ। और सर ये लिखिए। जो लिसान अरबी जुबान के लिए आता है, तो ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? ये मुजक्कर है, ये मुजक्कर है ना, इसलिए मैं आपको अरबी भी मुजक्कर कर दिया ना। और अरबी अरबिया के साथ मैंने अरबिया लिख दिया, अल्लुगा अल अरबिया कर दिया। इस तरह जो है नीचे देखें तो अल्लाह रब्बी व रब्बुक, अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा रब है। इस्लाम दीनी व दीनुक, इस्लाम मेरा दीन है तुम्हारा दीन है। अल कुरान किताबी व किताबुक, किताब कुरान मेरा भी है और तुम्हारा भी है। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी व नबी युक, काबतु क़िबलती व क़िबलतुक। तो काफ का जो हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ था, इसमी और इसमुक का, ये वही फलसफा उन्होंने 3 दिन में इस किताब में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसकी फिर तमरीन है, ये सारी तमरीन उन्होंने की है, वही बातें जो हमने उसमें सीखी हमने। और यहाँ तक हमारे पास कितने अल्फाज हो गए हैं, सलासा व सलासून। सलासा कहते हैं 3 को, और सलासून का मतलब होगा 30। तो 33 कलिमात हमारे यहाँ तक कह रहे हैं कि हो गए हैं, सीखने वाले हो गए, मेरा ख्याल में जितने हो गए हमारे पास। फिर उन्होंने इसके बाद जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस का एक कराया हुआ है कि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान क्या है। तो रजुल आदमी को कहते हैं, आदमी तो हम भी हैं, आदमी तो तुम भी हो।
तो रजुल जो है वो आदमी को बोलते हैं, आदमी। और इमराअतुन ये लफ्ज़ ज़रा मुश्किल है, औरत। लेकिन औरत के लिए इमराअतुन, आप इसको बेहतर ये निसा रहता भी है, कहते हाँ हैं। जिसको, हाँ, हाँ नहीं नहीं, निसा इसकी जमा है। अब इमराअतुन के क्या करें आप, कि इमराअतुन को ऐसे ना उसमें रोमन में लिख लें ताकि आपको याद रहे कि इसको मैंने पढ़ना कैसे है। इमराअतुन ऐसे लिखें जैसे आपको याद रहे कि मैंने इसका तलफ़ुज़ कैसे अदा करना है। ज़बर ज़ेर पे कभी भरोसा ना करें, ठीक है, अक्सर गलत हो जाता है। और इमराअतुन की जमा है निसा, हाँ जी। और रजुल की जमा है रिजाल, रेजाल। अपने पास लिख लिख के रखा करें ताकि आपको याद रहे। ये वैसे आपको एक दफा ना चलते रहेंगे अल्फाज तो फिर आपको ना खुद ब खुद याद आते जाएंगे कि मैंने बोलना क्या था। ये तिफलुन और तिफला मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क दिखा रहे हैं आपको। वालिदुन व वलदुन, वालिद कहते हैं बाप को, और वलद बेटे को बोलते हैं। बेटे वालिदा को। इसकी माँ होती है, और बिंत उसके लड़का लड़की को बोलते हैं। बिंत लड़की होती है, चाहे वो बेटी हो या लड़की हो। लड़की हम कहते हैं मेरी 4 लड़कियां हैं, यानी बेटी मुराद होती है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ये लड़की बड़ी अच्छी है, यानी लड़की मुराद होती है, गर्ल मुराद होती है। तो ये डॉटर और गर्ल दोनों के लिए आता है बिंत का लफ्ज, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वलद भी ऐसा ही है, बॉय और सन दोनों के लिए आता है। तो ये अपने दोनों को याद रखना है। इसको इंग्लिश में मानी लिखते रहें ताकि आपको याद रहे। तो आपने देखा कि या तो दो तरह के जमा, हमें हमने देखा है कि मुअन्नस दो तरह का बनता होता है। या तो आखिर में गोल ता लगा दो, और या फिर जो है वो इसका अलग से ही लफ्ज होगा, जैसे इमराअतुन बिल्कुल अजीब, बिल्कुल अलग से आ जाता है। तो सेम ये तरीका चलता रहता है। आपने मुअन्नस मुअन्नस की पहचान बताइए, आपको मुअन्नस की पहचान क्या है? हम नाम। जी सर, आखिर ताता। हाँ, पे हाँ, बोलता आती है। गोलता है। एक सिर्फ ये बताया हुआ है और नहीं बताया आपको? नहीं सर, इसके अच्छा, अलावा हाँ, नहीं वो पता मैं है। आपको, वो आपको मैं ना एक ही वो 5 इसकी अलामात है वो मैं आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। वो मैं आपको जिस दिन आएगा तो मैं आपको ग्रामर बता देता हूँ कि मुअन्नस कैसे बनता है। वो एक ही बस आपको 5 मिनट में पता लग जाएगा कि क्या है मुअन्नस, उसकी बात नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, ये देखें, सैयद और सैयदा। सैयद कहते हैं जनाब को, जनाब। और सैयदा मोहतरमा। तालिब, तालिबा, आलिम, आलिमा, फादिल, फादिला। फादिला भी जनाब को बोलते हैं, ठीक है। मोहतरम को मुकर्रमी लिखते हैं ना, मुकर्रमी, तो आप ऐसे लिखते हैं फादिला। उख्ती, फादिला, हबीबा। तो मतलब ये होगा कि मेरी मोहतरमा जो मेरी है वो मुअज़्ज़ज़ बहन मेरी जो है, उसके लिए फादिला का लफ्ज आता है, फादिल और फादिला का। अच्छा, आकिल, आकिला, शरीफ, शरीफा, कबीर, कबीरा, उस्ताज, उस्ताजा, मुअल्लिम, मुअल्लिमा। इस तरह जो है ये हाजा का इशारा चेंज हो जाता है, हाजा मुजक्कर के लिए, हाजा रजुल, और हाजिही इमराअतुन। इसमें कोई इसमें दूसरी बात, ये तो आपको आता ही है ना, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहे। अब देखिए यहाँ सारी ये सारी चीज़ें मुअन्नस लिखी हैं, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे ये सारी मुअन्नस है। ये किताब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आज, ताकि ये किताबों के पास पड़ी रहेगी और आप इससे पढ़ते रहेंगे, साथ साथ हम कंपेरिजन करते जाएंगे। यहाँ हमारे पास वोकेबलरी आती जाएगी और वहाँ से वो भी आएगा। और भी आपको किताबें शेयर करता रहूंगा ऐसे ना, ताकि आपके ना मुताला आपका वसी होना चाहिए, बिल्कुल वसी। आपको सारी चीज़ें एक साथ ही दे रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें आपके पास जमा होती रहेंगी। तो ना आए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है आपने कि यार ये क्या हो गया, कैसे करूंगा मैं सारा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो आपको अभी लिखा है ना, इसको जरूर शेयर किया करें। इसको यानी अभी जो आप लिख रही हैं रफ में ना, अगर आप चाहें कि यार इसकी मैं तस्हीह कर लूँ कि ये ठीक भी लिखा है कि गलत लिखा है, तो उसकी तस्वीर लेके ग्रुप में डाल दें। तो आपको सारे जो है ना वो मैं भी खुद ठीक करता रहूंगा और आप आपस में भी ठीक करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। ये लफ्ज है साअतुन, साआ। साआ कहते हैं घड़ी को, साआ। फिर घड़ियां मुख्तलिफ हुआ करती थी, हाथ पे बांधने के लिए, दीवार पे लगाने के लिए, अलार्म के लिए, और भी बहुत सारी घड़ियां होती थी। तो वे सा घड़ी को बोलते हैं, और सा ही बोलते हैं घंटे को भी बोलते हैं, दोनों लफ्ज के लिए, ठीक है। मिन दादा, ये एक और लफ्ज आ गया हमारे पास उसके लिए, मेज के लिए। मिन दादा, ये वैसी टेबल होती है, नॉर्मल जो टेबल होती है उसको बोलते हैं मिन दा। ये आपने याद रखना है। सबूरा, बोर्ड को बोलते हैं सबूरा। अगर वाइट बोर्ड है तो आखिर में उसका रंग लिखते होते हैं, लेकिन आप जर्नल याद रखें, सबूरा। नाफिजा, नाफिजा कहते हैं खिड़की को बोलते हैं, और इसका एक और भी नाम है शुब्बाक। शिब्बाक, शिब्बाक बोलते हैं, शुब्बाक लफ्ज है, शुब्बाक। अच्छा जी, तो ये आप इसको भी, शिब्बाक को भी याद रखें, नाफिजा। फिर है नशाफा, नशाफा कहते हैं, या मिन शफा, ये
बोलते हैं इसको पोंछने वाली चीज को। नशाफा डस्टर को बोलते हैं। कुर्रासा कापी को बोलते हैं, कापी को कुर्रासा बोलते हैं। तो फिर दफ्तर किसको बोलते हैं? दफ्तर बोलते हैं रजिस्टर को। रजिस्टर, दफ्तर, रजिस्टर को बोलते हैं। और ये कुर्रासा है कॉपी। सूरा तस्वीर को बोलते हैं। मिस्तारा पैमाने को बोलते हैं। खारिता, खारिता या खरीता, ये देखो ऐसे लिखा होता है खरीता, आपको अक्सर नजर आएगा। खरीता या खारिता मैप को बोलते हैं। दवात, पुराना पुराना है दवात, आजकल कहाँ मिलेंगे। महफजा, महफजा बटुए को पर्स को बोलते हैं। बटुए को भी बोलते हैं पर्स को। महफजा, महफजा। ये जरा मुझे कोई दोहरा दे ये अल्फाज सारे। صاد منزجة سورة نافذة نافذة شافة نشا كراسة صورة نافذة مسطرة خارطة دوات محفظة. क्या बात, क्या बात। अच्छा ये मेरी घड़ी है, कैसे बोलूंगा? هذه ساعة هذه ساعتي ساعة ساعتي हादिही साअती, शाबाश ساعتي. अहमद। हाँ। هذه हाँ ساعتي. शाबाश। हदा हादिही मिन ददा, हादिही सबूरा, हाफिजी नाफिजा, हादिही। अच्छा ये मेरी तस्वीर है। هذه صورتي. هذه صورتي हाँ हादिही खारिता, हादिही नशाफा, हादिही कुर्रासा, हादिही मिस्तरा, हादिही तल्लासा। तल्लासा पता नहीं क्या है, अब मुझे याद नहीं आएगा। हादिही महफजा, मा हाजा, ये वही सवाल करेंगे मा हाजा वाले। अच्छा हाँ ये तो छोड़ दें, ये तो सारे वही अल्फाज हैं। ये देखो ये सारे अल्फाज जो आपको, अगर इसमें सारे अल्फाज की समझ आ गई है आपको, तो ये इहदा व सबऊना कलिमात हो गए हैं। इहदा का मतलब होता है एक, और सबऊन का मतलब होता है 70, यानी 71 वर्ड्स जो हैं वो आपने अभी तक लफ्ज आपने पढ़ लिए हैं इन इन 15 सफहात में से। ये पहले पहले का जो सबक है हमारा इसमें है, इस किताब के। तो ये किताब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। और आप इसको देखें और इसको समझें थोड़ा बहुत, ठीक है। ये आसान है कि नहीं है आपके लिए, ठीक है, और फायदेमंद है कि नहीं है, इसको भी देखिएगा, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए जरा, जो अगला सबक है ना, यहाँ से शुरू करें। कि जो चीजें अपने अभी नाम सीखे हैं ना आसान आसान, उसको यहाँ पे लिखें, तीनों को लिखें। जैसे हम कहते थे इसमी, इस्मु का, इस्मुहू। ये हु का मतलब होता है हिज, हिज, उसका, उसका। तो आपने क्या लिखना है? किताबी किताबुहू, ना किताबी किताबुका किताबुहू, रब्बी रब्बुका रब्बुहू। और इस तरह ये जो है ना वो जितने भी अल्फाज हैं ना आसान आसान जो हैं वो सारे पहले यहाँ लिखे और इस तरह तीनों के साथ मिला के पढ़े, और फिर ये सबक पढ़ें। तो फिर आपको ये सारा सबक जो है वो बिल्कुल आसान लगेगा कि हाँ ये सवाल आसान सबक है ये वाला। तो इसको और भी पढ़िएगा, नीचे भी पढ़िएगा, ठीक है, आगे भी जाइएगा। टाइम तो यहाँ नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन अभी ये टाइम खत्म हो गया ना, वो बंद हो रहा है जूम। लेकिन आप इसको पढ़िएगा आगे, ठीक है, और हम भी इसको ना मिलके ही पढ़ेंगे। आप देखें कि क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, किताब अच्छी है कि नहीं है आपके लिए, ठीक है। ये किताब मैं आपको यहाँ से نعم शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि आपको बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें आपको देनी है, और इसी तरह देनी है। जिस तरह ये वीडियो का मैंने बताया था आपको, ये वीडियो आपने देखी थी ना, तो ये जो वीडियो थी हमने कहा था कि ये सारे इसकी वीडियोस हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये चैनल आपको दे दिया है कि एक अगर भी सीखनी है ना, अरबी सीखनी है तो इससे सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो चैनल है ना इसका मदीना अरेबिक वाला, ये फुसहा बोलता है, स्टैंडर्ड अरेबिक बोलता है। इसलिए आप यहाँ से सीख सकते हैं। इसी तरह आपको किताबें देता रहूंगा ताकि आप खुद भी पढ़ते रहें उससे, ठीक है, ताकि आसानी हो। दोनों पढ़ा करेंगे तो ज़्यादा आसानी हुआ करेगी हमारे लिए। लेकिन सर इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ अजीब है. हाँ नहीं, ये फुसहा बोलते हैं। हाँ, मुल्कों का फायदा फर्क होता है। मतलब मिस्री और तरह से फुसहा को, जैसे हमारे उर्दू का हाल है, उर्दू भी ऐसे होता है ना, हमें पता लग जाता है भाई ये तो पठान है, और ये जो है बलोची है, ये पंजाबी है, आसान से पता लग जाता है। इसी तरह अरबिक का भी आपको बाज़ औक़ात एहसास होगा, लेकिन वो जो अल्फाज बोल रहा है वो बिल्कुल जो है वो फुसहा के बोल रहा होता है, ठीक है। उसको उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जी ये सर मैं ठीक हो ये गया. मैं आपको अरबिक का शॉर्ट कोर्स भेज रहा हूँ ये। और तरीका जदीदा तालीम अरबी, ये भेज रहा हूँ। पहले ये किताब देखिए, ये किताब अच्छी है, ये आप भेज दिए, ठीक है।
اس کو چیک کیجیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلے، کیوں سوال ہے احباب کا؟ یہ کتنے الفاظ لکھے ہوں گے آپ نے؟ تانیہ کیا لکھا ہوگا آپ نے؟ کتنا لکھا ہوگا تانیہ؟ تانیہ نے کچھ لکھا ہے؟ جی سر لکھا ہے میں نے۔ کتنے کتنے الفاظ لکھے ہوں گے؟ سر گننے نہیں، ویسے بتا دیتی ہوں: معاہدہ، جدار، مکتب، مقعد، منفذ، بنت، نشافہ، راس، امرا، رجل، والدہ، مسترا، محفظہ وغیرہ وغیرہ، اچھا، طاولہ۔ جو بورڈ پہ جو لکھے ہوئے ہیں نا، اس کو تو اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے، آپ سارے یاد رکھیں۔ جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے لڑی، جو نہیں لکھا ہوا نا، وہ جو بتایا ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا چاہیے آپ کو، اور اس کو زیادہ کرنا چاہیے۔ خطران آپ نے لکھا ہے؟ شباک، صفحہ لکھا ہے آپ نے؟ شباک، ہاں خطران آپ نے دیوار کا کیا نام لکھا ہے؟ ہاں خطران جدار، خطران حائط، خطران نہیں، حائط حائط۔ سب شاید ہاں وہاں حائط لکھا ہے، شاباش، حائط بھی ہے، بالکل صحیح، جدار اور حائط۔ تو یہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے اپنے خیالات اور اپنے الفاظ یہاں شیئر بھی کر سکتے ہیں گروپ میں، تاکہ سب مل کے پڑھتے رہیں ہم لوگ۔ گپ لگایا کریں آپس میں، دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگایا کریں، ٹھیک ہے جی؟ یہ اچھا ہے، جتنا زیادہ بولیں گے، جتنا زیادہ پڑھا کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ خاموش نہ رہا کریں یار، بولا کریں۔ چلے، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسری کلاس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فی امان اللہ۔ یہ ہمارے